7 साल बाद किसी अवामी हुकूमत ने बजट पेश किया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट में कई बड़े ऐलानात किए। गरीबों, खवातीन, नौजवानों और खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया गया। सबसे बड़ी खबर यह है कि बजट में गरीबों के लिए मुफ्त बिजली और राशन का ऐलान किया गया है। बजट में इंतहाई गरीब अफराद के लिए फीकस 10 मुफ्त राशन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया गया है। 1 अप्रैल से अवाम को ये फायदा मिलेगा। सीएम उमर ने बजट में खवातीन के लिए भी बड़ा ऐलान किया। खवातीन को सरकारी ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुफ्त मिलेगी। वजीर आला ने शादी मदद योजना की रकम 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि लखपति दीदियों की तादाद बढ़ाने के लिए हुकूमत काम करेगी। लेबर कवानीन में तरमीम, 100% स्मार्ट मीटर की तनसीब, तमाम कौमी शाहराहों को अपग्रेड और कुशादा करना, खून के रिश्तेदारों को जमीन की मुंतकली पर स्टैंप ड्यूटी माफ और जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम समेत दीगर अहम ऐलानात भी किए गए। ज़राअत, बागबानी, सियाहत और तालीम के शोबों के लिए भी बजट में खास तौर पर जिक्र किया गया। करवाया था 2017 मार्केट हो जाए जो ग्रोथ। As an additional measure of social security, I propose free ration of 10 kgs per person to all AAY beneficiaries starting April 1st, 2025 to enhance nutritional support for the most vulnerable. To further improve accessibility and streamline distribution, the government will assess and upgrade fair price shops, reinforcing our commitment to an efficient and inclusive food security system. To provide financial relief and energy security to the most vulnerable, I propose to provide 200 units of free electricity to all AAY families in Jammu and Kashmir. Integrated with the PM Surya Ghar Bijli Yojana, this initiative will enable the installation of grid-connected solar systems, generating the required power and eliminating electricity bills. With an investment of 750 crore spread over 5 years, this step will also reduce AT&C losses and promote sustainable energy. I urge this August House to support this transformative move towards a greener, more inclusive and self-reliant Jammu and Kashmir. Starting from 1st April 2025, all women in Jammu and Kashmir will be granted free ridership on government-owned transport. All women in Jammu and Kashmir will be granted free ridership on government-owned public transport, including e-buses. This initiative will ease financial burdens, enhance access to education and employment, and ensure safer, more affordable travel. By removing transport costs, we aim to increase women's mobility, boost workforce participation, and foster greater independence. I urge this August House to support this progressive step towards a safer, more inclusive, and economically empowered Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir continues to face significant infrastructure deficits in areas like road connectivity, water supply, sewage, tourism, and power. Addressing these challenges requires substantial financial resources and continued support from the central government. This year, we actively engaged with the central government, resulting in the formation of an expert committee to resolve financial issues. I met with the Honourable Prime Minister, Union Home Minister, and Union Finance Minister on multiple occasions. I am pleased to share that our efforts have paid off. The central government has approved special assistance for J&K and will support fiscal reforms to enhance revenue and expenditure management. The restoration of full statehood is a deeply cherished aspiration of the people of Jammu and Kashmir, and our government remains resolute in working towards its fulfillment. My government is committed to strengthening grassroots democracy by empowering Panchayati Raj institutions and urban local bodies, which play a crucial role in local governance and development. Our government is committed to holding elections to these bodies, reinforcing our commitment to accountable, inclusive, and decentralized governance for the holistic development of Jammu and Kashmir. This budget emphasizes inclusive growth, fiscal prudence, and strategic investments in infrastructure, agriculture, industry, healthcare, education, and digital governance.
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बजट बहुत अच्छा था और उसने हर चीज का अहाता किया है। जम्मू कश्मीर दोनों का अहाता किया गया, इससे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। ये अच्छा था, इसने हर चीज को कवर किया है, दोनों जम्मू और कश्मीर को कवर किया है, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को कवर किया है, हेल्थ सेक्टर को कवर किया है, टूरिज्म सेक्टर को कवर किया है, कोई भी सेक्टर छोड़ा नहीं गया। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनके बारे में भी सोचा गया है, उनके लिए भी किया गया है, और पावर सेक्टर के लिए किया गया है। बहुत अच्छी बात है। और राशन वगैरह सबके लिए मैं समझता हूँ कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा गया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट से लोगों को राहत मिलेगी और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। वजीर सेहत सकीना ईतू ने कहा कि बजट बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम के शोबों पर खास तवज्जो दी गई, सेक्टर के बारे में सोचा गया, और जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया है 3-4 महीने पहले, अपना एतमाद, अपना यकीन, अपना भरोसा जो है उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर दिया है, और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी आज कोशिश की इस बजट में उस यकीन, उस भरोसे को पूरा करने का। और जो भी यहाँ पे आज अनाउंसमेंट हुए, चाहे वो ओल्ड एज का पेंशन हो, विडो का पेंशन हो, डिसेबिलिटी का, राशन का, बिजली का, या मैरिज असिस्टेंस जो 50 से 75 किया गया है, हर एक कदम है। एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के बारे में इतना सोचा गया है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मुबारकबाद के हकदार हैं। सकीना जी, ये बहनों के बारे में कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उससे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है कि हमारी बहनें जो है वो बसों में फ्री सफर कर। मैडम एक बताइए, एक चीज के जो इश्यूज थे, जो बहुत सारी चीजें थी, जैसे वुमेन्स के पहले मैं बात करूंगा, कितना आपको लगता है कितना फायदा उससे होगा लेडीज को? जैसे ये मैरिज असिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, फ्री राइडरशिप होगी, कितना फायदा होगा? ये बहुत बड़ा फायदा है हमारी बहनों का। अगर आप पेंशन की बात करें उसमें भी ज्यादा है उनका, और जो ये फ्री सफ़र करने का जो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, और इसी तरह मैरिज असिस्टेंस वाली स्कीम जो है उसको बढ़ाया गया है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है। और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने इतने बड़े कदम उठाए और इतने जो जिसकी ज़रूरत थी वक्त की, वो फैसले आज यहाँ पे किए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बहाल करने को लेकर प्रशासन सक्रिय। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अधिकारियों को सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। बनिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल में हादसा, रात को सुरंग में कई ट्रकों में हुई टक्कर, एक के बाद एक कई ट्रकों की जोरदार टक्कर। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत, पंजाब के पल्लीपुरा का रहने वाला था ड्राइवर। त्राल में लोगों को तेंदुए के खौफ से मिली मुक्ति, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा, लोगों ने राहत की सांस ली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एडिशनल तर्जुमान इकबाल तरंबू ने तस्लीम किया कि बजट के पीछे का इरादा अच्छा था, लेकिन उन्होंने काफ़ी होमवर्क न करने पर वज़ीर आला पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली का दायरा वसी होना चाहिए था। उन्होंने रोजगार की हिकमत अमली पर भी सवाल उठाया। तो मुझे लगा कि बजट का जो है इंटेंट अच्छा था। देखिए, वी आर इन द ऑपोजिशन, लेकिन जहां हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के फायदे की बात हो, हम उसको एक्नॉलेज करने से पीछे नहीं हटते। तो इंटेंट वाज गुड, लेकिन होमवर्क बहुत कम था। वो इसलिए क्योंकि अगर उमर साहब ने 200 यूनिट फ्री बिजली दी है, लेकिन इसका एम्बिट बड़ा होना चाहिए था ताकि ज्यादा लोगों को इसका, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एफ्लुएंट क्लास को ये बेनिफिट दे दीजिए, मगर डिजर्विंग को तो दे दीजिए। तो इसका एम्बिट बड़ा करने की जरूरत थी। और जो एम्प्लॉयमेंट की बात उमर साहब ने की कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, हम इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, हमारे पास इतने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जो यूथ हमारा है उनको एम्प्लॉयबल बनाएंगे, लेकिन उनका एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, यहां वो रुक गए। आखिर अगर हम हमारे यूथ को एम्प्लॉयबल बनाएंगे, उनके लिए यहाँ जगहें तो होनी चाहिए जहां वो एम्प्लॉय हो जाए। तो वो एम्प्लॉयमेंट उनकी प्राइवेट सेक्टर में होगी। उस पर उमर साहब ने कुछ खास नहीं बोला। एक छोटा सेक्टर उमर साहब ने टच किया,
ऑटो डीलर्स का, ये जो गाड़ियों का, तो एक उन्होंने वो बताया कि ये करने से उनको बेनिफिट आएगा। तो बेनिफिट का ये मतलब है कि वो सस्टेन कर पाएंगे और वो एम्प्लॉय कर पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ ऑटो डीलर्स के लिए नहीं, ये इंडस्ट्री के लिए, ये टूरिज्म के लिए, ये ट्रांसपोर्ट के लिए, ये हर चीज के लिए चाहिए। तो वो जो है होमवर्क मुझे लगता है वो कम हुआ है, क्योंकि ये चीजें हम करेंगे, स्किलफुल भी बनाएंगे, यूथ को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन फिर जॉब कहाँ है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद खरा ने बजट की तारीफ की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बजट का ताल्लुक है उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी पाई जाती है। रीज़न बीइंग कि इसमें ऑलमोस्ट सारे ही सोशल सेक्टर्स जो हैं वो टच किए गए हैं। तो उस पॉजिटिविटी और सोशल सेक्टर के बिना पे ये कहा जा सकता है दैट इट इज़ ए प्रो पीपल बजट। सोशल सेक्टर तो सोशल सेक्टर होता है, उसमें हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, सोशल वेलफेयर आता है। जैसे हेल्थ में हॉस्पिटल्स आती हैं, डिस्पेंसरीज आती हैं। सोशल सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे लोगों के फायदे के वास्ते होती हैं। दोज आर कॉल्ड एज सोशल सेक्टर्स एंड ऑल दो सोशल सेक्टर्स हैव बीन touched और उसमें benefit has been extended to the people. So that is why we can term it as a pro people. हालांकि कुछ चीजें हैं, कैजुअल वर्कर्स का हमने बार बार जिक्र हमने भी किया, बाकी पार्टीज भी करती हैं, ये लोग खुद भी इनके मेंबर्स करते थे, लेकिन वो बहस के दौरान में पता चलेगा कि क्या रीजंस हुए कि वो क्यों नहीं उसमें इंक्लूड किए गए। हमारी भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो कैजुअल वर्कर्स वगैरह के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो कैजुअल हैं, टेम्पररी हैं, वो डेली वेजर्स हैं, उनके रिलेटेड कोई ना कोई रिलीफ उनके वास्ते शायद आएगा। नहीं आया, वो बहस के दौरान में पता चलेगा कि वो उनको बाहर रखने का क्या वजह। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये मोदी जी का लगता है, मोदी जी का विजन, जो मोदी जी की स्कीम है उन्हीं को ही गुनगुना रहे थे। अब बीजेपी को हर चीज मोदी जी का ही दिखेगा तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला का पेश करदा बजट महज एक धोखा है। उन्होंने सिर्फ मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों के बारे में बात की है। उन्होंने अपने मंशूर में वादा किया था कि वो जम्मू कश्मीर के हर शहरी को मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि मुफ्त गैस सिलेंडरों का क्या हुआ। देखिए, आईवाश है, जुमलाबाजी है। जो उमर साहब ने आज बजट पेश किया उसमें आम लोगों के लिए, खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए नहीं है। उमर साहब ने आज जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने वही जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उन्हीं को डिस्कस किया है। नया जो उमर साहब देने वाले थे उसमें कुछ नहीं है। आप देखिए जो उनकी कमिटमेंट्स थी, जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो में चावल की बात की, गैस की बात की थी, एम्प्लॉयमेंट की बात की, मुख्तलिफ सेक्टर्स पर उन्होंने बात की, कुछ भी नहीं रहा इस बजट में। ये बजट वैसे जुमलाबाजी है, फेल बजट है। इस बजट में कुछ भी नहीं है एक आम आदमी के लिए। अगर आप देखेंगे 12 गैस चूल्हों की बात की गई थी, 10 किलो चावल की बात की गई थी, 1 लाख जॉब्स की बात की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो डिलीवरीज है उनको रेगुलराइज करने की बात उन्होंने कही थी, जो नीड बेसिस है उनकी एनहेंसमेंट की बात की गई थी। लेकिन ये जो बजट उमर साहब ने आज पेश किया है महज एक धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इस बजट में आम आदमी, आम जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए कुछ भी नहीं। AAY जो कैटेगरी आती है, जो हम कहेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे होते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेंगे। देखिए, जहां तक हमें याद है कि जो मैनिफेस्टो में उमर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए 200 यूनिट बिजली हम फराहम करेंगे, उसमें जम्मू कश्मीर के नागरिक था, AAY नहीं था। AAY नहीं था। आज जो उमर साहब ने AAY के लिए थी, मुझे बताइए जो आम नागरिक है जिनके साथ उन्होंने बजट में पेट्रोल पर 1 रुपए और डीजल पर 2 रुपए की छूट को कम कर दिया गया, और इसका मतलब ये है कि अब लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। आम लोगों ने इस फैसले पर मायूसी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से तमाम अशिया मुतासर होती हैं।
जम्मू कश्मीर में आज बजट पेश किया गया है और आज इस बजट से बहुत सी उम्मीदें लोगों को थी, लेकिन बजट में झटका भी दिया गया है लोगों को। 1 रुपया पेट्रोल तो 2 रुपये डीजल को महंगा किया गया है, रिबेट लगाया गया है। आम आदमी जो है उसकी जेब पे कितना इम्पैक्ट इसका आएगा वो हम जानेंगे। जो पेट्रोल डलवाने यहाँ पे आए हैं, 1 रुपया पेट्रोल और 2 रुपये डीजल महंगा किया गया है। आम जनमानस कैसे इसको देखता है? आगे बहुत महंगाई है, इसलिए और बोझ पड़ेगा गरीब आदमी और कम होगा। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। सरकार को ये लगता है कि पेट्रोल और डीजल का जो इम्पैक्ट है वो बाकी चीजों पे आता है? हर चीज पे आता है, सब कुछ इसी पे चलता है। डीजल से गाड़ी का सब्जी जो भी सामान करना है सब कुछ इसी से आएगा ना, तो महंगा तो होगा। महंगाई हो गई, इससे ये हम जानेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, 1 रुपया पेट्रोल और डीजल महंगा किया गया है, रिबेट लगाया गया है। स्टूडेंट्स जो रोज जाते हैं पेट्रोल डलवाते हैं, कितने उनके लिए क्या? स्टूडेंट्स को तो कुछ होना चाहिए, डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलना चाहिए। वैसे अब जो नौकरी वाले हैं वो तो कर सकते हैं, बट इनके लिए डिस्काउंट होना चाहिए जो स्टूडेंट्स वगैरह। जो महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल, इससे आपकी बोझ पे कितना अतिरिक्त बोझ आएगा? सर देखो, जिसके पास जॉब्स वगैरह नहीं है उसको तो दिक्कत होगी, तो जिसके पास जॉब है उसको तो चलो वो तो चला लेगा, टाइम निकाल लेगा, बट दिक्कत तो उसके लिए जिसके पास जॉब्स नहीं है। अब आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में जॉब्स वगैरह कितनी कम है, तो लोगों के पास काम नहीं है, वेले बैठे हुए हैं, दिमाग उल्टा ही चल रहा है उनका गलत जगहों पे, तो उनके लिए थोड़ा कुछ हो सकता है। तो बाकी चीजों पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा जब ट्रांसपोर्ट भी, जब पेट्रोल ज्यादा महंगा होगा। वो तो है ही है, वो तो किराए वगैरह तो वो तो बढ़ ही रहे हैं, वो तो कम हो नहीं ना रहे हैं। तो किराया जो है वो भी ज्यादा होगा इससे, और जो इम्पैक्ट है इसका वो अब लोगों के, जो आम लोग हैं, जो स्टूडेंट्स तबका है, उनकी जेब पे आएगा। और इनका कहना है कि हालांकि डिस्काउंट जो है युवाओं के लिए होना चाहिए था, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए होना चाहिए था, लेकिन जो है ये जो महंगाई की गई है, अब इसका इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, जो बाकी किराए हैं उन पे भी आने वाला है, जिससे कि आज लोग जो हैं इससे नाखुश हैं। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के महाराजा पर दिए गए बयान पर युवा राजपूत सभा ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने तवी पुल पर 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रखा और सुरेंद्र चौधरी का पुतला भी नजर आतिश किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने असेंबली में माफी का मुतालबा किया और कहा कि अगर ऐसा न हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। युवा राजपूत सभा की तरफ से आज तवी ब्रिज को जो है जाम किया गया है। जो सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम के बयानों के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? मैं बोलना चाहता हूं, सुरेंद्र चौधरी जी अपना डीएनए चेक करवाइए, आपके डीएनए में कहीं ना कहीं खोट है, क्योंकि अगर आप जम्मू के हित के डिप्टी सीएम बन के गए थे तो कभी भी जम्मू का डोगरा ये बात बर्दाश्त नहीं करगा। आप जम्मू प्रोविंस से एक सीएम बन के गए थे, लानत है आपके ऊपर। ऐसे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ऐसी सरकार पे हम लानत करते हैं। अभी तक अगर उनके प्यादे ने, एक उनके कठपुतली ने अगर ऐसा बयान दिया तो उमर अब्दुल्ला ने उनकी जगह माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन पर ऐसा कोई भी उनका बयान नहीं आया। हम कंडेम करते हैं, हम देश हित के लोग हैं। अगर शहीद कोई था तो वो 24-25 नौजवान थे जिनको किलिंग जो है किश्तवाड़ में की थी, लाइन में खड़े कर, वो लोग थे देश के हित की बात करने वाले। ये तो देशद्रोही लोग हैं। ये प्रोटेस्ट तो ये बंद कब तक चलेगा? देखिए, ये जो बात उन्होंने की है, ये जम्मू कश्मीर में एक फूट डालने का काम किया है। ऐसा ना हो कि इस फूट की वजह से जम्मू खिते को अलग होना पड़े, कश्मीर को अलग होना पड़े। मैं मोदी जी को क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि हम उन घटिया लोगों के साथ अपना जीवन, अपनी जो स्टेट है इसको व्यतीत नहीं करना चाहते। अगर आप में दम है तो उनको यूटी रखिए, प्रशासन उस पर लागू रखिए, जम्मू को अलग खिता बना दीजिए। तो देख सकते हैं कि जम्मू को अलग खिता बना दिया जाए। यदि ऐसे बयान आते रहे तो आप देख सकते हैं कि युवा राजपूत सभा की तरफ से आज तवी पुल को बंद किया गया है। ये जो जम्मू का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, आप देखिए सरकारें बनती है मुद्दे उठाने के लिए। जिस इंसान ने 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है और ये 1947 के पहले का राग अलब रहे हैं, जो देश के लिए मर मिटते हैं उनको शहीद कहा जाता है, जो देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। हम ये भी कहना चाहते हैं
वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के सरमाई जोन में 3 माह की तवील सरमाई तातीलात के बाद तमाम सरकारी और निजी स्कूल दोबारा खुल गए। स्कूलों को 1 मार्च को खुलना था, लेकिन मौसम की खराबी के बायस तातीलात में तौसी की गई थी। स्कूल खुलने पर तलबा में खुशी की लहर देखी गई और खसूसी इस्तकबालिया तकरीबात का भी इनेकाद किया गया। असातिज़ा ने तलबा का खुतबा खैर मकदम किया और कई स्कूलों में खसूसी तहाइफ भी तकसीम किए गए। इन इस्तकबालिया सरगर्मियों का मकसद तलबा में तालीमी जज्बा बढ़ाना और उन्हें खुशगवार तालीमी माहौल फराहम करना है। हम सूरज सा चमके, हम रोके से ना रुके, हम स्कूल चले। हम बिल्कुल 3 माह की आम सरमाई तातीलात के बाद आज दोबारा वादी कश्मीर में स्कूल्स जो हैं वो खुलने जा रहे हैं और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि जो टीचर्स हैं किस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स का, और ये कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट्स को एक फ्रेंडली माहौल दिया जाए और इनसे जो है बात करने की हम कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल्स एंटर हो रहे हैं और स्कूल आ रहे हैं और यकीनी तौर पर एक खुशनुमा माहौल है और खुशनुमा मिजाज में, खुशनुमा मूड में जो स्टूडेंट्स हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है स्कूल का। और ऐसे में स्टूडेंट्स की क्या होप्स है, इनसे बात करेंगे। और नाम बताएं आप। माय नेम इज़ शाज़िया और यहाँ हम आज विंटर वेकेशन का बाद फर्स्ट डे है, तो हमें यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है। जो हमारी टीचर्स हैं यहाँ के, उन लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया है, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारी टीचर्स हमारी इतनी केयर कर रहे हैं, हमारे लिए इतना अच्छा वेलकम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाम अंशरा है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया और हमारे सब टीचर जो है वो वहाँ पहले दरवाजे से हमारा वेलकम कर रहे थे और आई होप कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई करें, हम इनका नाम रोशन करें। इंशाल्लाह जिस तरह हमारा पहला दिन गया वैसे हमारा पूरा एकेडमिक सेक्शन अच्छे से जाएगा, हम सभी अच्छा करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। तो जिस तरह आज रिसेप्शन हुआ आप लोगों का, तो कितनी अच्छी कोशिश समझते हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की? ये बेस्ट था, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया, अच्छे से वेलकम किया हर स्टूडेंट का। मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी बहुत अच्छा लगा, अच्छे से हुआ। हमें पहला दिन था पर इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हुआ वेलकम। तो कितना खुश हैं आप? बहुत खुश। किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। तो कितना खुश हैं आप? क्या क्या मिला आज आपको यहाँ? कितनी खुशी हुई आपको? बहुत। यहाँ पे अच्छा लग रहा है स्कूल में? मैं बहुत एक्साइटेड थी इस स्कूल में, मतलब मैं 3 महीने के बाद स्कूल आई और ये विंटर ब्रेक भी अच्छी गई और स्कूल में भी अच्छे से वेलकम किया और मैं एक्साइटेड थी मैं अपनी फ्रेंड्स से मिलूँगी तो और अपनी टीचर से मिलूँगी। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। शोपियां के लड़के ने ग्रीस में जीता कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया। चैत्र नवरात्रों के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। शहर में धारा 144 लागू। सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी। सुजानपुर में इस बार 12 मार्च से राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव का आगाज। चौगान मैदान में तैयारी शुरू। होली को लेकर संभल पुलिस की अपील। कहा जिसे रंगों से ऐतराज हो वो घर से ना निकले। सीओ अनुज चौधरी बोले साल में होते हैं 52 जुमे, लेकिन होली एक ही बार आती है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और साजिश बेनकाब। बलूचिस्तान में चीन को 5000 एकड़ जमीन देने का दावा। चंबा के तीसा मार्ग पर भूस्खलन। पूरा पहाड़ सड़क पर गिरा। 2 विधानसभा क्षेत्रों का संपर्क कटा। जेसीबी की मशीनों से रास्ता खोलने की कोशिश। जम्मू में डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महाराजा हरि सिंह को तानाशाह बताने पर विरोध जताया। कठुआ में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराजा हरि सिंह को लेकर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के बयान को लेकर किया प्रदर्शन। कहा महाराजा का अपमान बर्दाश्त नहीं। हिमाचल में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का विरोध जारी, मगर काम पर लौटेंगे वकील। कल शिमला में हाईकोर्ट से राजभवन तक निकाला गया था रोष मार्च। श्रीनगर कारगिल हाईवे को साफ करने की कोशिश जोर शोरों से जारी। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। हाईवे पर यातायात बहाल होने में लगेगा वक्त। शोपियां के लड़के ने ग्रीस में जीता कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया। चैत्र नवरात्रों के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। शहर में धारा 144 लागू। सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी। सुजानपुर में इस बार 12 मार्च से राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव का आगाज।
चौगान मैदान में तैयारी शुरू। होली को लेकर संभल पुलिस की अपील, कहा जिसे रंगों से ऐतराज हो वो घर से ना निकले। सीओ अनुज चौधरी बोले साल में होते हैं 52 जुमे, लेकिन होली एक ही बार आती है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और साजिश बेनकाब, बलूचिस्तान में चीन को 5000 एकड़ जमीन देने का दावा। गुजरात के भरूच में रेत से भरा ओवरलोडेड ट्रक पलटा, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बहाल करने को लेकर प्रशासन सक्रिय, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अधिकारियों को सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल में हादसा, रात को सुरंग में कई ट्रकों में हुई टक्कर, एक के बाद एक कई ट्रकों की जोरदार टक्कर, हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत, पंजाब के पल्लीपुरा का रहने वाला था ड्राइवर। त्राल में लोगों को तेंदुए के खौफ से मिली मुक्ति, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा, लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर पंजाब बॉर्डर पर मवेशी तस्कर इंडियन ऑयल टैंकर में कर रहे थे मवेशियों की तस्करी, लखनपुर पुलिस ने 13 गौवंश कराए मुक्त, एक तस्कर भी गिरफ्तार। चंबा के तीसा मार्ग पर भूस्खलन, पूरा पहाड़ सड़क पर गिरा, 2 विधानसभा क्षेत्रों का संपर्क कटा, जेसीबी की मशीनों से रास्ता खोलने की कोशिश। जम्मू में डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, महाराजा हरि सिंह को तानाशाह बताने पर विरोध जताया। कठुआ में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, महाराजा हरि सिंह को लेकर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के बयान को लेकर किया प्रदर्शन, कहा महाराजा का अपमान बर्दाश्त नहीं। हिमाचल में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का विरोध जारी, मगर काम पर लौटेंगे वकील, कल शिमला में हाईकोर्ट से राजभवन तक निकाला गया था रोष मार्च। श्रीनगर कारगिल हाईवे को साफ करने की कोशिश जोर शोरों से जारी, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी, हाईवे पर यातायात बहाल होने में लगेगा वक्त। शोपियां के लड़के ने ग्रीस में जीता कांस्य पदक, अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक, उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया। चैत्र नवरात्रों के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए, शहर में धारा 144 लागू, सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी। सुजानपुर में इस बार 12 मार्च से राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव का आगाज, चौगान मैदान में तैयारी शुरू। होली को लेकर संभल पुलिस की अपील, कहा जिसे रंगों से ऐतराज हो वो घर से ना निकले। सीओ अनुज चौधरी बोले साल में होते हैं 52 जुमे, लेकिन होली एक ही बार आती है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और साजिश बेनकाब, बलूचिस्तान में चीन को 5000 एकड़ जमीन देने का दावा। गुजरात के भरूच में रेत से भरा ओवरलोडेड ट्रक पलटा, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बहाल करने को लेकर प्रशासन सक्रिय, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अधिकारियों को सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पीएम मोदी कल गुजरात में लखपति दीदी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में 50,000 खवातीन के शामिल होने का इम्कान है। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि वुमेन्स डे के पेश नज़र प्रोग्राम के दौरान सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी वुमेन पुलिस एहलकारों पर होगी। सारे इंतजामात सिर्फ वुमेन पुलिस एहलकार ही संभालेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी नवसारी में आयोजित लखपति दीदी प्रोग्राम में आने वाले हैं। खास तौर पे ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। 1.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी एक ही कार्यक्रम में शामिल होगी। महिला दिवस के शुभ अवसर पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और ये पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी वो गुजरात पुलिस की महिला फोर्स को दी गई है। गुजरात पुलिस की 2165 जितनी महिला कांस्टेबल, 187 महिला पीएसआई, 61 महिला पीआई, 19 महिला डीवाईएसपी, 5 महिला डीएसपी, 1 महिला आईजीपी, 1 महिला एडीजीपी और होम सेक्रेटरी श्रीमती निपुर्णा तोरव ने ये पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी ली है। और खास तौर पे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है
ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें ऐतिहासिक संख्या में महिलाएं शामिल होने वाली हैं और उससे भी ज्यादा ये कार्यक्रम को पुलिसिंग एवं लॉ एंड ऑर्डर की फील्ड में एक ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम उसकी देखभाल वो महिला ऑफिसर्स एवं महिला पुलिस स्टाफ द्वारा की जाएगी। हेलीपैड से लेके रूट से लेके सभास्थल, संपूर्ण 100% जिम्मेदारी ये महिला पुलिस को दी गई है। गुजरात पुलिस की मेरी ये सब बहनें ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए तैयार हैं। हमारी पुलिस की महिलाएं सशक्त है और ये पूरे कार्यक्रम को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए वो शक्तिशाली है। तो गुजरात के एमओएस होम हर्ष संघवी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। न्यूज़ 18 JKLH में आपका खैर मकदम है। बहुत ही अच्छी सोच है कि वुमेन्स डे के मौके पर पीएम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खवातीन को दी जा रही है। ऐतिहासिक इसे कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ये अवसर पे नवसारी में आयोजित हो रहे ऐतिहासिक लखपति दीदी कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं और यही कार्यक्रम के उपलक्ष्य में गुजरात सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में पूरी जिम्मेदारी वो महिला पुलिस को दी गई है। और खास तौर पे अगर ये कार्यक्रम को आप देखोगे तो महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाली है। उसी के साथ कार्यक्रम की जो पूरी जिम्मेदारी है, चाहे वो कलेक्टर है तो कलेक्टर भी महिला है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी महिला है और पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भी महिलाओं को दी गई है। ये अपने आप में पुलिसिंग सेक्टर के अंदर एक सबसे ऐतिहासिक निर्णय है और मैं ये मान रहा हूँ कि महिला पुलिस भी बहुत ही सशक्त है। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे गुजरात के पुलिस बहनों ने जिस प्रकार से काम किया वो बहुत ही एक्टिवली और डिटेल्ड कामगिरी करने में माहिर है। और खास तौर पे मैंने देखा, कल मैं जब उनसे मिलने गया था, मैंने कांस्टेबल से लेके ADGP सबको मैं मिला, उनकी आंखों में एक विश्वास था और ये कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का उन्होंने जो प्रयास किया है, मुझे विश्वास है कि उन्हें जरूर से सफलता हासिल। जी हाँ, बिल्कुल हर्ष संघवी साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री श्री चंबा के तीसा मार्ग पर भूस्खलन, पूरा पहाड़ सड़क पर गिरा, 2 विधानसभा क्षेत्रों का संपर्क कटा, JCB की मशीनों से रास्ता खोलने की कोशिश। जम्मू में डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। महकमे तालीम कश्मीर ने मेगा एनरोलमेंट मुहिम शुरू कर दी है और इसका बाज़ाब्ता तौर आगाज हो चुका है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर JN एतू ने जिला अनंतनाग के गडोल इलाके की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से इस मुहिम का आगाज किया। गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कई हमारी स्कीम्स हैं, जैसे समग्रा के तहत नए जो है नई बिल्डिंग्स तमीर करना हो या इसी तरीके से नए क्लासरूम्स बनाने हों, या हमारा जो UT कैपेक्स अपना होता है या डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स होता है उसमें चाहे वो नई बिल्डिंग्स नए क्लासरूम हों, ICT लैब्स हों या स्मार्ट क्लासरूम्स हों, ये सारी चीज़ें जो है इसके हवाले से प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है उसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। खास तौर से जो हमारे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे कोई साधन और नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल ये एक सोर्स है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उस हवाले से प्लानिंग हो चुकी है और फेज वाइज मैनर में जो जो हमारी ये डिफिशिएंसी है उनको जो है दूर किया जाएगा। डायरेक्टर साहब ने मेरा एडमिशन किया, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर, हम डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चों का एडमिशन किया उसने अपने हाथों से। सर, बाकी बच्चों के लिए भी यही मैसेज रहेगा, वो भी गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला करें। वार गुजारिश करेंगे योर एडमिशन कर शोबी जान वार शुक्रगुजार अहन जमाय ओतन सान खतर वार गरीब खुशी क्या पैगाम बस दुनिया खुशी साने बच्चन खतर गांव किन बच्चन साने बच्चन खतर। पुंछ के सुरनकोट कस्बे में बस स्टैंड के करीब खौफनाक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें दुकानें
2 दुकानें मुकम्मल तौर खाकस्तर हुई, जबकि एक मकान को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरा दुकानों में मारूफ हुसैन की रेडीमेड कपड़ों की दुकान और रितु शर्मा की दर्जी की दुकान शामिल है, जबकि वीरेंद्र कपूर के मकान के दरवाजे और खिड़कियां भी आग की लपेट में आ गए। वाक़े की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गए और सख्त जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मुतासरा दुकानदार मारूफ अहमद का कहना है कि आग लगने से उनका बड़ा नुकसान हुआ है और वो सरकारी मदद के मुंतजर है। लाइट सर्किट की वजह से आग लगी है। मैं अभी मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे आग लगी, मैं अभी दौड़ते हैं, यहाँ पे आग लगी हुई थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया। अब मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ठंडा माल अभी बहुत बड़ा था, गर्म माल था, ठंडा माल था, पूरा हो गया। मैं बहुत गरीब हूँ, जितना होगी मेरी मदद फील करता हूँ कि मेरी मदद कर जाए। मेरा 7-8-10 लाख का नुकसान हो गया कम से कम। मेरा बहुत माल पड़ रहा है, मैं गरीब, मुझे पापा की डेथ हुई है, तो उसके चक्कर में कभी थाने में, कभी पुंछ, कभी इधर मैं दुकान नहीं खोल पा रहा था, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मागाम के मानहामा के लोगों ने बिजली ट्रांसफार्मर और बिजली सप्लाई न होने पर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मानहामा के लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 20 रोज से उनका गांव बिजली से महरूम है। उनका कहना है कि बिजली ट्रांसफार्मर जला है और इसकी मरम्मत भी नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। एहतजाजों ने महकमे से अपील की कि ट्रांसफार्मर को जल्द ठीक करके नस्ब किया जाए और बिजली बहाल की जाए। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको उठाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद उन्होंने 4 दिन के बाद आया, तो फिर उन्होंने यहाँ से ट्रांसफार्मर उठाया। फिर वहाँ से उन्होंने वो बडगुम शिफ्ट किया है, वहाँ से वो ट्रांसफार्मर वापस आया। खाली 1 घंटा वहाँ यहाँ से जब हमको यहाँ पे चालू हो गया तो खाली 1 घंटा निकल गया उसको, तो फिर जल गया। हाँ, फिर जल गया। फिर उसको 8 दिन के बाद फिर वापस उसको लेके गए कि तब तक उन्होंने कोई यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की, ना वो यहाँ पे आए ना कुछ। ये ट्रांसफार्मर वो नीचे उतारते, वो ले जाते उधर बडगाम में, नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। ट्रांसफार्मर जब ख़राब होता है वो आते हैं, वो लोग लेते हैं, फिर 10-20 दिन के बाद वो वापस लाते हैं। और वही मुबारक में तकरीबन हमको बिजली नहीं आई है। गवर्नमेंट बार बार कहते हैं कि माह मुबारक महीने के बाबरकत महीने में हम फराहम करते हैं सब चीज़ें, लेकिन हम इस बिजली से महरूम हैं। हमारे गांव में बिजली नहीं है और शाना सिर्फ नेरान 1 घंटे 2 घंटे नेरान तो दजान बे पत गए वन बिजली डिपार्टमेंटस तम तो मगर चेरी पान दस्ती पे तुलान ये निवान बडगोम पे तौर 6 दह 8 दह 10 दह ये सियासी अपलोड करान थोड़ा तो तेल गसान यह वापस आज गए तकरीबन 20 दह पावर वगैरी। मेहरबानी कर रिक्वेस्ट करान तुहद वसात गवर्नमेंटस यह गोस ट्रांसफार्म। अब लोग जो हैं जनरेटर ला रहे हैं, और क्योंकि आज माह मुक़द्दस का महीना चल रहा है, सहरी और इफ्तारी के वक्त काफ़ी सारे दिक्कतें पेश आते हैं। ये देखिए आप लोग अब जनरेटर यानी अपनी किराए पर जनरेटर लाकर यानी बिजली के लिए, और आज इस माह मुक़द्दस के महीने में भी ये लोग जो हैं अभी बिजली सप्लाई से महरूम है और इन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। और इनका इल्ज़ाम है कि बिजली महकमा संजीदगी के साथ यहाँ पे गौर नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे निगरानी नहीं कर रहे हैं, ये इनका इल्ज़ाम है। इसलिए उम्मीद करते हैं और डिमांड भी ये करते हैं कि जल्द अज जल्द इनका ट्रांसफार्मर जो है वो ठीक कर लिया जाए और फ़ौरन यहाँ पे उसको नस्ब कर दिया जाए, ताकि आज माह मुक़द्दस के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त जो लोगों को दरपेश मुश्किलात आते हैं बिजली ना होने की वजह से, इनका कहना है कि जल्द ट्रांसफार्मर यहाँ पे नस्ब किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है उनका अज़ला हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और डिपार्टमेंट जल्द इस पर गौर करे और मानहामा मागाम में ट्रांसफार्मर इन्हें आज सर 9 यहाँ पे नस्ब किया जाए ताकि लोगों को बिजली फराहम हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मानहामा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। जिला रामबन से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुहिम जो नौजवानों ने बर्फ से ढकी शिरवाधार पोगल परिस्तान की चोटी को सर किया है। शिरवाधार की चोटी सतह समंदर से 34 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। मौसम सरमा खसूसन बर्फबारी के दौरान भारी बर्फबारी से ढकी चोटियों को सर करने का मकसद जिला रामबन की खूबसूरती और दिलकश मनाजिर की तरफ आम लोगों और ट्रैकरों को माइल करना था। इस मुहिम जुई के दौरान इन ट्रैकरों को एक बर्फानी तोदे का भी सामना करना पड़ा।
एक्टिविटीज़ है, काफ़ी यहाँ पे कर सकते हैं, जिनका काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पे। बट अभी एडमिनिस्ट्रेशन या हम बोलेंगे टूरिज़्म की तरफ से उतना कोई ख़ास इसमें तवज्जो नहीं है, जिससे हम इन चीज़ों को बड़े लेवल पे कर पाए। एक चीज़ अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इंडियन आर्मी जो हमेशा हमें यहाँ पे सपोर्ट करती है। इंडियन आर्मी ने लास्ट 3-4 साल से यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रैकिंग इवेंट्स भी कराई, और इंशाल्लाह हमारा विद इन नेक्स्ट मंथ में हमारे यहाँ पे एक रॉक क्लाइंबिंग का इवेंट होने जा रहा है, जिसमें भी हमें ऑलरेडी इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही है। या जो हमने ये एक्सपीडिशंस किए हमने, इनमें हमें पूरा आर्मी के साथ कोऑर्डिनेटेड थे, तो एक तरह का वो भी एक रहता है कि सपोर्ट पीछे से रहता है, खुदा न खास्ता कहीं पे, क्योंकि इसमें खतरे भी होते हैं। तो ओवरऑल आर्मी की तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट, लेकिन हम चाहते हैं जैसे हमें आर्मी सपोर्ट करती है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या टूरिज़्म हो, वो भी इसी तरह हमें सपोर्ट करे। ये जो आज का ट्रैक था हमारा, ये था हमारा सर्वाधार का। सर्वाधार टॉप ये पोगल प्रस्थान की एक खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे जो है मौसम सरमा में हमारे हिंदू भाई यहाँ जो है पूजा पाठ वगैरह करने आते हैं, यात्रा होती है यहाँ पे। तो हमारे साथ AR शाह था, हमारी एक पूरी टीम थी। ये नहीं कि हम ऐसे ही निकल गए, जब भी हम कोई ट्रैक करते हैं तो प्रॉपरली उसको एक मैनेज होता है, किस तरह से करना है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं। हमारे बनिहाल में आपको बता दूं कि एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लड़का है जिसका नाम AR शाह है, जिसने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, और उसके साथ हम गए थे। ये नहीं कि चला गए। मैं आपको सभी को बता दूं कि ये ट्रैक जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और जहाँ पोगल परिस्तान और अपने सराउंडिंग की बात करूं, ये बानिहाल है, महू है, यहाँ की जो पीक्स और यहाँ पे जो विंटर्स में जो स्नो होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। सब डिवीजन मड़वा किश्तवाड़ के तलबा को नाकाबिल यकीन चैलेंजों का सामना है। वो शदीद बर्फबारी के दरमियान अपने इम्तहानात में शिरकत की तैयारी कर रहे हैं। इलाके में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बहादुरी के साथ वालिदैन और असातिज़ा रास्ते की रहनुमाई कर रहे हैं। वो पटरियों को साफ कर रहे हैं और तालिब इल्मों के लिए एक रास्ता बना रहे हैं। मुमतहिन अब्दुल हमीद ने बताया कि उनके घरों से स्कूल पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। नेटवर्क तकरीबन न होने के बराबर है। मकामी लोग सख्त मौसमी हालात से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बुनियादी सहूलियात की कमी सूरत हाल को मजीद ख़राब कर रही है। लोग मदद की अपील कर रहे हैं।